Hello and welcome to the open mic being presented by DSW MRIRS. I'm Jaspreet Singh. I'm your host for the night. With me is Rishika Arora. Rishika, are you there? Yes, Jaspreet, I'm here. So, good evening, everyone. This is Rishika Arora. I welcome you all in this virtual open mic night that is presented by Department of Student Welfare, Manav Rishna Institute of Manav Rishna International Institute of Research and Studies. I would like to thank all of you for this cooperation. I completely agree that it would have been a fun and entertaining event if it has been offline, but unfortunately, due to this pandemic, we had to go through this one. But let's look at the positive side that at least you guys are safe. So now I would like to welcome Dr. Gurjeet Kaur Chawla, Dean Associate Welfare and Director RMR, and Ms. Yashika Hasija, Coordinator DSW. Dr. Gurjeet Kaur Chawla is Dean of Student Welfare and Director RMR. Ma'am, please bless us with your words of blessing. Ma'am. I am audible? Am I audible to you now? Yes, ma'am. Yeah, Yes, ma'am. ma'am, You're you are audible. audible. Yeah, yeah. Good evening, everyone. Good evening, Jaspreet. Good evening, Rishika. And good evening to Good all evening, ma'am. the participants. And I'm really, really happy to see all my lovely, students after so long. उनके नाम देखकर ही मुझे जो खुशी हो रही है वो बहुत ही मजा आ रहा है आप सबको देखकर. And as Rishika has mentioned that due to this pandemic, we are not able to go offline, but this is the only mode we can, meet each other and we can have a jolly good fellow time. And this virtual open mic platform is a platform where you can um, share your thoughts through ghazal, through shairi, through poetry, and through the songs. And I welcome all the participants, whether they are from Manav Rashna or from other institutions. On behalf of Department of Students Welfare, I welcome all of you, and my special mention goes to all the faculty members who have spared their valuable time and they had, participated in this event. Kanan sir, welcome. Chawla sir, welcome, and other faculty members also. I my heartfelt welcome to all of you, and I hope that you all are going to have a fun time during the entire event. And God bless you. Jaspreet and Rishika, special mention to you, and Yashika for taking such a lovely initiative. And I hope that in near future also you keep on connecting the students, you keep on connecting the faculty members, and we'll have a safe and a happier tomorrow. With this, I will not take much of your time, so please start with your event. And we would love to, listen to all the shero shairi and ghazals and poetries, as it is an open platform. So thank you very much. Thank you, all of you. Thank you so much for your words, ma'am. Okay, so without any further delay, let's get into the event. So over to you, Jaspreet. Thanks a lot, ma'am. Thanks a lot, Rishika. As is rightly said, he who sings frightens away his ills. So, what better way to start this virtual open mic night during this pandemic than with a song? We have with us Professor and Head of MRDC, Professor Sridhar Kannan, who will sing a song for us today. Over to you, sir. Best of luck. Am I audible? Yes, sir, you are. Okay. I didn't know I was to start. I think I can welcome to everyone, and thank you so much for giving me a chance. I don't know why my video is not working. Is it working? Yes, sir, it is. Yes, sir, you are visible. I'm visible. Okay, I'm not visible to myself. Anyway, I just want to before I sing anything. I mean, I have not decided, but I just thought I'll say a few words to the students. I hope all of you are safe, and I think these are times which are testing us beyond our what we have expected, and I think all of us are doing well.
yesterday, day before, we conducted exams in our college with our students, and we did a wonderful job with the students. So I think things will get back to normal soon. So with that, I'll just sing a few words from a movie, Veer Zara. I hope I'm audible because I'm singing from my mic. I'm not singing. I'm singing from my phone, not the computer. Hello. Yes, sir. So Okay. you are audible. Okay. Fine. So, जानम देख लो मिट गई दूरियां मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ जानम देख लो मिट गई दूरियां मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ कैसी सरहदें कैसी मजबूरियां मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ तुम छुपा ना सकोगी मैं वो राज हूँ तुम भुला ना सकोगी वो अंदाज हूँ गूंजता है जो दिल में तो हैरान हूँ क्यों मैं तुम्हारी दिल की तो आवाज हूँ सुन सको तो सुनो धड़कनों की जबान मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ So I think that's the message we as faculty give to all our students that हम लोग हैं यहाँ पे और हम लोग हमेशा आपके साथ ही रहेंगे और जैसे गुरजीत मैम ने कहा है बहुत जल्द होपफुली चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी एंड वील बी बैक टू आवर normalcy but a very different normalcy so I wish all of you to be safe all your family members to be safe and as a doctor I would definitely advise you to worry about COVID but not to panic it's a disease like any other disease and hopefully we should have a cure soon so thank you to give me this opportunity uh, thank you Gurjeet ma'am and thank you DSW thank you Thanks a lot, sir. Indeed, we are very lucky to have such supportive staff in our college. Moving on to our next participant. As is well said, poetry is ordinary language raised to the nth power. We have with us today Professor Shilpa. She is an associate professor at MRIRS and she would like to present a poetry. Over to you, ma'am. Are you here, Shilpa ma'am? I think Shilpa ma'am is not here. So just please jump up to the next. Sure, Shilpa ma'am. ma'am is here. Shilpa ma'am is here. Okay, Shilpa ma'am is here. Okay, Shilpa ma'am Yeah. is here. Just wait. Yeah, ma'am. Over to you. Just I'm here. Yes, ma'am. We can hear you, ma'am. Please continue. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah, ma'am. Please. Oh, okay. Okay. Should I start? Yes, ma'am. Okay. You are audible to all of My us. my voice is Please audible to continue, all of ma'am. you. Yeah. Okay. I'm Dr. Shilpa Sapadgaonkar from Department of Biotechnology. और मैं आपके सामने अपनी लिखी एक कविता पेश करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है गुलामी। हिंदी में लिखी गई है लेकिन इसमें कुछ कुछ इंग्लिश के वर्ड्स आ रहे हैं, उसके लिए माफी। तो इसका शीर्षक है गुलामी। गई नहीं अभी गुलामी, मिली नहीं पूरी आजादी, राज करते हैं जब हमारे मन मंदिर पर अब भी विदेशी।
घटिया लगे सामान स्वदेशी, इंपोर्टेड में है क्वालिटी। भारत में है गंदगी, विदेश में है सफाई। बोलते हैं हम अंग्रेजी शान से, मातृभाषा से शर्माते। धोती साड़ी हम पहन न पाते, जीन्स हमें भाते। भारत में तो हम पढ़ भी न पाते, विदेशी स्कूल ही हमें भाते। भारत में बहुत है बेकारी, विदेश में है नौकरी। खाने में भी पकवान विदेशी, बच्चों बूढ़ों के मन को भाते। लड्डू गुलाब जामुन आज हमें डाउन मार्केट नजर आते। हमारी दीपावली की शान भी होती चीनी दीपों से रोशन। हिमाचल हो गया है क्राउडेड, स्विट्जरलैंड जाने का है फैशन। तो नए तरीकों की चकाचौंध में भूल गए हम अपनी जीवन शैली। जब सोच हमारी जंजीरों में है जकड़ी, तब कैसे कहे मिल गई आजादी। नमस्कार। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। थैंक्स अ लॉट मैम, दैट वाज वंडरफुल। काफी अच्छी कविता आपने पेश करी। Moving on to our next performance, we have Pradeep sir. Pradeep sir is the general manager of CAD MRIRS and he will present his song today. Pradeep sir, are you there? Pradeep sir? Okay, I think Pradeep sir is not here right now. So we will now move on to our other participants. We have a poetry from Jitesh Mishra. Do we have Jitesh with us? Yes, I'm here. Please continue, Jitesh. All the best. जय हिंद जय भारत। मेरा नाम जितेश मिश्रा है और आज जो मैं अपनी कविता सुनाने जा रहा हूँ, आज स्वामी विवेकानंद जी की पुण्यतिथि है, तो उनसे प्रेरित होकर के मैंने कुछ पंक्तियां लिखी है, तो आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। क्या मैं प्रस्तुत कर सकता हूँ? हाँ जी, जरूर। आज हमें चीन के खिलाफ और हमारे देश में हम देख सकते हैं कि कोरोना वायरस जो है वो 7 लाख करीब मामलों को छूने वाला है, तो हम सबको एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो बॉर्डर्स हैं, नेपाल हो गया या चाइना या पाकिस्तान, अभी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं हमें, तो हमें एकजुट होना पड़ेगा। उससे प्रेरित होकर कुछ कविताएं सुनिए। क्यों भटक रहा है युवा, अब होश में आ और जोश दिखा, अखंड भारत की प्रखंड सोच को युवा माध्यम से आगे ला। बदल गई पीढ़ी, बदल गए तरीके, आ गए अब नए तौर, चल चल के तू थक बैठा, अभी शुरू भी नहीं हुई दौड़। अरे अखंड भारत की राजनीति को अपने बलबूते पर हम बढ़ाएंगे, एक सुंदर राष्ट्र बनाना है, हम कसम एक ऐसी खाएंगे, न छेड़ेंगे किसी की बेटी, न किसी का घर हम जलाएंगे, और जल्लादों की बस्ती में हम फिर इंसान बसाएंगे। अब मेरी कुछ पंक्तियां विवेकानंद जी से प्रेरित होकर के आप सभी के समक्ष। विवेकानंद का ज्ञान है तू, भारत का अभिमान है, भगत सिंह की आजादी और गौतम बुद्ध का ध्यान है, छल छल बहती गंगा की धाराओं का विज्ञान है। तू मंदिर मस्जिद के झगड़े को छोड़, तेरे अंदर ही अल्लाह और भगवान है, और छोड़ो आलस्य मेरे साथ ही उठो मौन निद्रा त्यागो, भारत का जिम्मा उठाऊंगा अपने कंधे पर, कहने वाले वीर जागो, गद्दारों के हाथ में आऊंगा, कहने वाला आजाद जगे, हंसते हंसते चढ़ जाऊंगा फांसी, भगत सिंह आजाद जगे, ऐसा देश बनाओ जिसमें गांधी बापू बसते हो, हमारे देश के गलियारों में वीर भगत भी हंसते हो। सुभाष चंद्र जी अपनी बुद्धि से सैन्य बल चलाते हो, और कितना जोश है सरफरोशी की तमन्ना में, ये हमारे देश के युवा बतलाते हो। और हम युवाओं को खुद चुननी होगी राह, चाहे कोई कहे ना कहे, हम युवाओं को खुद चुननी होगी राह, चाहे कोई कहे ना कहे, और भारत माता से करना होगा वादा कि तेरा वैभव अमर रहेगा माँ, हम दिन चार रहे ना रहे, तेरा वैभव अमर रहेगा माँ, हम दिन चार रहे ना रहे। और ये चीन आजकल हमारे देश में जो है, कुछ लोग वो चीन को बहुत सपोर्ट करते हैं और वो सुनना नहीं चाहते चीन के अगेंस्ट, तो उनके लिए मेरी कुछ पंक्तियां हैं। क्या कहते हो मेरे भारत से चीनी टकराएंगे, अरे क्या कहते हो मेरे भारत से चीनी टकराएंगे, चीनी को तो हम घोल घोल कर चाय में पी जाएंगे। वह बर्बर था, वह अशुद्ध था, हमने उसको शुद्ध किया, उसने हमको युद्ध दिया था, हमने उसको बुद्ध दिया। अरे 100 बार की एक बात है कि हमें चीन के विरोध में हर अपना स्टेप लेना पड़ेगा, जिससे हम उसको आज खुद से कमजोर कर सकें।
जय हिंद जय भारत। मेरी कविता समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये अवसर प्राप्त देने का। जी धन्यवाद जितेश। मंदिर मस्जिद का झगड़ा छोड़, तेरे अंदर अल्लाह भगवान है। आजकल इन पंक्तियों की जरूरत काफी लोगों को पड़ गई है। धन्यवाद, आपने इन पंक्तियों द्वारा हमारा मार्गदर्शन करा। नेक्स्ट ऑन we have a special performance for all of you. All the world's a stage, and all the men and women are merely players. Shakespeare said that, and we listen to it. We have with us Chirag Chaturvedi. Chirag is an actor at etc., the Dramatic Society of Guru Tegh Bahadur Institute of Technology. Are you there, Chirag? Chirag has prepared a special monologue for all of us. Yeah, Chirag? Jaspreet, hi. Can you hear me? Hi, Chirag. You Hi. may continue, Chirag. All the best. Break a leg. Okay. Can you see me? Hello? Yes, Chirag. Yes, Chirag. Okay. Okay. Mr. Rocky Chotala, can you please stop screen presenting? Mr. Rocky Chotala, आपने स्क्रीन प्रेजेंटिंग गलती से ऑन कर लिया है. Can you please switch that off? Yashika ma'am, are you in the call? Yeah, Chirag, continue. ओके तो मैंने एक एक्ट पहले भी किया हुआ है, मतलब मोनोलॉग। अगर आप लोगों ने माय नेम इज़ खान देखी होगी तो उसमें शाहरुख खान रिजवान खान का कैरेक्टर प्ले करता है। तो उसको, उस कैरेक्टर को उठा के मैंने एक एक्ट प्रिपेयर किया हुआ है पहले भी। तो इस कंपटीशन का एक्चुअली मुझे बहुत शॉर्ट नोटिस में पता चला था, कल ही पता चला था, तो मैं कुछ नया तो प्रिपेयर कर नहीं पाया। पर इसी कैरेक्टर, मतलब इसी कैरेक्टर में आके मैं कुछ और किसी और टॉपिक पे बात कर लूँगा, तो मैं करता हूँ। हेलो हेलो, मेरा मेरा नाम रिजवान खान है। खान। थैंक 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 यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू। मैं मैं आप लोगों को अपनी वाइफ से भी मिलवाने वाला था। मंदिरा मेरी वाइफ हैं, but she's out of the house, so she couldn't be here. I'm alone, but I love her. I love Mandira very much, very much. Yes. तो यहाँ पर मैं आप लोगों से एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। मेरा मेरा टॉपिक है द डिमाइज ऑफ सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत सिंह राजपूत। he he was a wonderful person। सबसे बड़ी बात ये है कि वो वो एक बहुत ही अच्छा इंसान था, बहुत अच्छा इंसान था। मेरी अम्मी कहा करती थी कि दुनिया में सिर्फ दो तरह के इंसान होते हैं, एक अच्छा इंसान और एक बुरा इंसान। सुशांत सिंह राजपूत एक अच्छा इंसान था। उसका हमारा हमको छोड़ के चले जाना बहुत ही बुरा था। but I think what's gone is gone, and we can't do anything about it. बस मुझे बुरा इस बात का लग रहा है कि जो लोग उसकी डेथ पर ये थ्योरीज निकाल रहे हैं कि उसका मर्डर हुआ है। he was a product he
suffered due to nepotism, इस बात पे मुझे बहुत बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि I absolutely don't think he lacked due to nepotism. He was a very successful star, very successful star. He did quite well in MS Dhoni, and he was my favorite. So please don't say that he suffered, please. And please don't plant stories about him, please. That's it. I I I don't want to say any more. That's it. Thank you. That's it. That Thank was you. wonderful, Chirag. Yes, do you want to add something? No. That was wonderful, चिराग, और काफी Thank you. अच्छा टॉपिक आपने टच करा अपने मोनो एक्ट में. सुशांत की डेथ से हम सभी परेशान थे, सभी दुखी थे. Moving on to our next participant, we have a Shire here, Mr. Kuldeep Thakur. He is with CNN News 18. Are you here, Mr. Kuldeep? हेलो. Mr. Kuldeep Thakur. हेलो. Yes, please continue, sir. ओके, थैंक यू. सबसे पहले मैं डिपार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर मानव रचना का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने ये मौका दिया. मैं कुछ शायर और पोएम्स वगैरह लिखता हूं, तो मैं वही प्रेजेंट करने वाला हूं अभी. तो लेट मी जस्ट ओके. सो मैंने सबसे पहले एक मोटिवेशनल पोएम लिखा था, जो थोड़ा लंबा है पर बहुत शॉर्ट में मैंने लिखा था. आप लोग शायद रिलेट कर पाएँ तो मेरे लिए ये सौभाग्य की बात होगी, मैं इसमें सक्सेस होऊंगा. तो मैं शुरू करता हूँ. ले आज की मशाल को संघर्ष पर तू ताव दे, कुछ तोड़ कर मरोड़ कर तू अनगिनत से घाव दे. तो भावना उतार दे सोए सभी कपार पर, जो मारती है आदमी उसी डंडे प्रहार पर. उस भीड़ पर जमीन पर इंसानियत को दे फैला, चिंगार या हुंकार की बस जहन में उतार दे. राहों की ढलती शाम को सुबह की ओट दे चढ़ा, हर आंसुओं की दाम को झोली की ओर दे बढ़ा. हिसाब के उस वक्त को एक तय शाम दे जरा, तो खुद भी मिल सवाल से मशाल वक्त की जला. तपिश मशाल के लिए संघर्ष पर तू ताव दे, संघर्ष पर तू ताव दे. हम जानते हैं मर चुकी आवाज तेरी दब चुकी, हम जानते हैं मर चुकी आवाज तेरी दब चुकी, पर लब तेरे आजाद हैं, सड़कों पे बहते खून पर कुछ कहने को बेताब हैं. उस रात को तू याद कर जुगनू के साथ बात की, सालों भर आंखें मीचती किताबों वाली रात की. ना हो हताश थाम ले तू मौन की ही राख दे, ले आज की मशाल को संघर्ष पर तू ताव दे, संघर्ष पर तू ताव दे. वो शस्त्र हाथ में लिए कानून ताक पे चढ़ा, वो कह रहा गुमान से दलाल धर्म का बना. हजार सीना चीर के खूंखार भीड़ है खड़ा, है आंख में लहू भरा. एक शख्स जमी पे अधमरा, एक शख्स जमी पे अधमरा, एक हाथ पैर पे पड़ा, सांसों की भीख मांगता. ये कौन है जो हंस रहा, ये वही सफेद पोश है. उस बेबसी आवाज में ये कौन है जो हंस रहा, ये वही सफेद पोश है जो इस कत्लेआम में है वोट बैंक गिन रहा. इस वोट की समीकरण को शून्य के माथे चढ़ा, कर ले हिसाब सांस का और कत्ल का इल्जाम दे. ले आज की मशाल को संघर्ष पर तू ताव दे, संघर्ष पर तू ताव दे. ये एक कविता थी जो मोटिवेशनल था. मैं रोमांटिक वगैरह भी लिखता हूँ और लव जो टॉपिक है उस पर भी लिखता हूँ, तो एक वो भी मैं पेश करना चाहूँगा. ये एक नज्म है और ये ऐसे है कि आखिरी दिन था जब कोहरे ने भी हमसे दगा किया, आखिरी दिन था जब कोहरे ने भी हमसे दगा किया. मैं दूर तक जाते हुए तुम्हें देख ना सका, फिसल कर आंख से शबनम कोहरे को और गहरा करता है. कहाँ देख पाता है भरी आंखों से एक पहाड़ तक कोई. दाग मेहंदी का लगा था जो मेरे सफेद कुर्ते पर, दाग मेहंदी का जो लगा था मेरे सफेद कुर्ते पर, तुम्हारे चले जाने के बाद भी वो जा ना सका. लटका पड़ा है उसी अलमारियों के बीच अब भी, जो खोलूं एक पल्ला तो यादें लुढ़कने लग जाते हैं. तुमसे दूर जाना मेरा मर जाना हुआ. और ये एक नज्म था.
एक आखिरी मैं पेश करता हूँ, ये एक कविता ही है। इसका शीर्षक है तुम्हारी आंखें। जब भी मैं दुनियादारी में लिप्त हुआ जाता हूँ, ये अक्सर मुझे संभाल लेती हैं। जब कभी मैं दुनियादारी में लीन हो जाता हूँ, आपाधापी में व्यस्त हो जाता हूँ, भरी दोपहरी में शहर से बहुत दूर जब मेरे माथे का पसीना मेरे कमीज को भिगोने लगता है। मैं एक रिपोर्टर हूँ और मैं क्योंकि न्यूज़ में काम करता हूँ, तो हमेशा फील्ड में रहने की एक जो है सो वो तलखियत रहती है और हमेशा फील्ड में काम करना रहता है। तो उसको देखते हुए मैंने लिखा है कि जब भी मैं दुनियादारी में लिप्त हो जाता हूँ, मैं ये अक्सर मुझे संभाल लेती है। जब कभी मैं दुनियादारी में लीन हो जाता हूँ, आपाधापी में व्यस्त हो जाता हूँ, भरी दोपहरी में शहर से बहुत दूर जब मेरे माथे का पसीना मेरे कमीज को भिगोने लगता है, उस वक्त भरे बाजार के बीचों बीच सड़कों पर ख्यालों में तुम्हारी आंखें मेरा हाथ पकड़ लेती है। तुम्हारी आंखें मेरा हाथ पकड़ती है, जोर से करीब खींचती है मेरी आंखों से। तुम्हारी आंखें चुपचाप कहती है, अब बस करो, घर चलो। पूरा बाजार घूर रहा होता है हमें, मारे शर्म के मैं तुम्हें दूर कर देता हूँ। छोड़ो, सब देख रहे हैं। प्रेम के पहले अध्याय की तरह है तुम्हारी आंखें। स्ट्रीट लाइट की तरह रात भर टकटकी लगाए देखती है मुझे। मैं कहीं भी होता हूँ, तुम्हारी आंखें मुझे रास्ता बताती है, मेरे साथ होने का एहसास दिलाती है। एक दिन अचानक ही जब उसी दुनियादारी से परेशान होकर त्यागने चला था अपना जीवन, खड़ा हो गया था मैं गंगा के बनी पुल के मोटे खंभे पर और कूदने ही वाला था। उस वक्त गंगा की धाराओं के बीच फिर से दिखी तुम्हारी आंखें, एकटक लगाए जैसे देख रही थी मुझे। तुम्हारी आंखें मुझे इमोशनल करती है, जिम्मेदारियों का एहसास दिलाती है और कंफ्यूज करती है तुम्हारी आंखें। तुमसे ज्यादा वफादार है ये, तुम्हारे चले जाने के बाद भी अब तक मेरे पास है ये। अब मैंने भी इसे अपना लिया है। जो कल तक गुस्से में दरवाजों के बाहर रखता था, इसे मैंने लैपटॉप और फोन की स्क्रीन पर सजा लिया है। अब दोनों साथ रहते हैं, मैं और तुम्हारी आंखें, मैं और तुम्हारी आंखें। बहुत बहुत शुक्रिया, ये मेरा एक प्रेजेंटेशन था। आप सभी लोगों का जो सुन रहे हैं मुझे, उन सभी का शुक्रिया। जसप्रीत, यू कैन कैरी ऑन। बेहद ही खूबसूरत शब्द आपके कुलदीप जी। जी, Moving on, शुक्रिया। next we have another professor from Manav Rachna's talented faculty, Professor Sunita Joshi. She is an assistant professor at MRIIRS. Are you here, ma'am? Yes, I am here, Jaspreet. Thank you so much for giving us this opportunity. Yeah, Thanks a hi lot, to all. ma'am. Yeah, Continue, ma'am. thank you, DSW. Thank you, ma'am, Gurjeet ma'am. Thank you, Jaspreet, for giving us this opportunity to stress our burst also, to burst our stress. And I'm going to sing some mix song, some old mix song for you people. So let me start. कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए, मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप चुराए, चुराए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए, कभी कहीं जब हुई बोझल सांसें भर आई, बैठे बैठे यूं ही जब आके तभी मचके प्यार से चलके छुए कोई मुझे पर नजर ना आए, नजर ना आए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से
परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं, जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे, मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे, मुस्कुराऊं तो ऐसा लगे कि जैसे होठों पे कर्ज रखा हो, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, ला 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 ला, ला 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 ला, कुछ पाकर खोना है, कुछ खो कर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है, दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, तेरी बिंदिया रे किया है, तेरी बिंदिया रे, सजन बिंदिया ले लेगी, तेरी बिंदिया रे किया है, तेरी बिंदिया रे, तेरे माथे लगे हैं यूं जैसे चंदा तारा, तेरे माथे लगे हैं यूं जैसे चंदा तारा, जिया में चमके कभी तो ऐसे जैसे कोई अंगारा, सजन निंदिया ले ले लेगी, तेरी निंदिया रे। एंड एट लास्ट माय फेवरेट सॉन्ग, कहीं दूर जब दिन ढल जाए। आई थिंक मुझे सारा लिरिक्स तो नहीं आता, 2-3 लाइनें। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए, मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए, कभी कहीं जब हुई बोझल सांसें, बैठे बैठे आई, जब यूं ही आके तेरी। थैंक यू सो मच। आई थिंक आगे मुझे लिरिक्स नहीं आती। थैंक यू सो मच जसप्रीत, थैंक यू मैम, थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग मी। थैंक्स अ लॉट मैम, बहुत ही मीठी आवाज है आपकी। थैंक यू जसप्रीत, थैंक नेक्स्ट, यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक you so much for participating. Next on, we have Harleen Kaur. She's president at Ini Vogue and she would like to present some poems here. Harleen, over to you.
Arlene, please unmute yourself. Okay. Can you hear me now? Yes, Erling, you're audible now. Please Okay, continue. perfect. I usually write poems when I feel something intense, so they might be incoherent, but you'll get the raw emotion from them. So the first one I wanted to share with you all was Zach. It's a poem about someone who was unable to accept the fact that society has certain norms and expectations from you. So let's start. Puppets terrify me. Oh, yeah, the little girls play with those dolls, they terrify me. Mannequins, all the same, constant. This supposed perfection frightens me. But how would it not, if that's what you see all the time? And if you try to touch them, they'll start turning you into themselves. Call me insane, but I see thousands of such dolls walking around, trying to be friends only to betray in the end. Yes, you get it. Crowds, people. I'm scared of them. Only one friend I have, Zach. That's what I call him. And he shows up when I need him. He smiles at my success, accepts my flaws. He's not terrifying. He's not a puppet. And he can't be controlled by the rest. But they all say he doesn't really exist. Uh, Apart from that, there was one time when I was able to walk around the city at night, and it's quite unusual for someone from Delhi to roam around the city at night. So it was about that. So I call this City at Night. I remember it vivid and clear. The darkness at the night was alluring, and that shimmering starlight, that cold river, the winds, the feeling, it was amazing. No word can describe it. It was a feeling of independence. To roam freely, regardless of day and night, regardless of your height, your attire, regardless of your fact that it was dark. I remember it was 11 p.m. when I left the hotel. You can't do that back at home. It's dangerous, everyone says. So I was scared to leave, but I did. And I never regretted. Seeing the city at night was a blissful sight. And not being afraid of the darkness, the terrible deeds that were done in the shadows, set me free that night. I only observed, did nothing. It was cold, yet warm, dark, yet light for me, and it just was. Uh, the next poem I'd like to share with you all is called Scarlet. This is the poem from the point of view of an imaginary friend whose owner died. Okay, she's gone. Scarlet wrists and violet lips was all that was left of her. Shattered glass and crimson brass was all that surrounded her. And in that mess, a letter. A letter from Arlene, telling how she eventually faded, telling how terrified she was for her surroundings, telling me all her suffering I seemed to be oblivious to. She told me how every day she would struggle to let herself be free from the platinum cage, from the social change. To stop her choices being made by others, Arlene was scared of people. She was terrified of everything and everyone, for they were all trying to enslave her, to bind her. She was different. She didn't care about her looks, wasn't scared about reading gigantic books, but dressed in gowns congested her. They were just not pleasant for her. She sought peace, but embraced chaos, sought silence, but found violence, was brave, and only craved freedom, hated to hear that you can't do this because you're this, disobeyed everyone, my Arlene, saved me from the crimson when I had no hope, my Arlene, was too perfect for this world. She promised never to leave me alone, but they broke her so much that she left. She left me forever alone, and all I see her is in red and crimson. Uh,
And the last one I'd like to share with you is called Developmental Decay. Uh, it's about uh, embracing the fact that you cannot feel anything. I don't remember feeling anything anymore, although I think I've felt before. The last emotion that I felt was something like being a piece of glass and being thrown on the floor to be broken apart, to be pushed away. But I was desolated anyway, and that devastation stopped the day I started thinking like the rest, only to delay the decay of my emotions. I put up a mask and started hanging out with the cool kids. Alec, you can't wear this. This is hideous, is what they'd say when I felt myself. But it was my choice. I decided to change. Just so that I may not feel strange, I had to be accompanied at all times because only loners walk alone. And that all made me look perfect. And top of social hierarchy was where I landed. But in all this facade, I left one thing myself. I was myself no more. I was a long forgotten lure that existed in only my mind. And that was the friendship I experienced. And be it true that feeling was emptiness, not good, not great, but better than devastation, than being bullied, than being the laughing stock, but I had enough. That emptiness was eating me on the inside, and slowly I did decay until the mask was hollow, and I had myself swayed away by choices of people I followed. And even then I despised who I had become, and I left, broke those chains that bounded me, only to be set free. I don't feel those emotions anymore, emotions of friendship. To me, concept of romanticism is an illusion. Love for me is a deception because that's all I've had for eternity, apart from my solace and me. Um, Thank you, Jaspreet. You can continue. Thanks a lot, Harleen. Those were indeed some very deep poetries. Your pseudonym, your pseudonym Athena certainly suits you. Moving on next, हमारे बीच एक और शायर मौजूद हैं MRIRS से अजय कुमार. Can you hear me, Mr. Ajay Kumar? Yes, yes. Hello. Hello. Yes, please continue, sir. First of all, thank you so much for giving me this wonderful opportunity. लॉकडाउन में काफी समय से लोगों को कुछ इसी चीज का इंतजार था, तो आज मिल गया. फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड आफ्टरनून गुरजीत मैम एंड याशिका दी. तो आपके सामने कुछ शायरीज और पोइट्री रखना चाहूँगा, जो कि कभी कभी लिखता हूँ मैं, तो वही वो सब शेयर करने के. तो कुछ शायर भरे अंदाज से ही शुरुआत करना चाहूँगा कि अपने दिल की बातों को कुछ इस तरह लफ्जों में बयां किया है, अपने दिल की बातों को कुछ इस तरह लफ्जों में बयां किया है कि वो एक कविता बन गई. पसंद आए तो कविता याद रखिएगा, और अगर भूल हो गई तो पहली समझ से माफ कीजिए. तो सबसे पहले एक छोटी सी शायरी पेश करना चाहूँगा कि चांद बिना चमक के दिखता नहीं. एक लड़का अपने गर्लफ्रेंड कह लो या कुछ भी कह लो, जिससे वो प्यार करता है, उसको कह रहा है कि चांद बिना चमक के दिखता नहीं, तेरा चेहरा बिना हंसी के चमकता नहीं. इसीलिए खुश रहा करो, इसीलिए खुश रहा करो, कहीं अंधेरा ना छा जाए इस दुनिया में बिना चांद के. गौर कीजिएगा कि कभी अंधेरा ना छा जाए इस दुनिया में बिना चांद के, और खो ना जाए हमारी खुशी बिना तेरे हंसी के. अगर आगे बढ़ूँ, एक पोइट्री पेश करना चाहूँगा कि लॉकडाउन में काफ़ी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपस में मिल नहीं पाए. आप में से हो सकता है कोई एक वैसा हो. तो उसके लिए लिखा है कि खाली पड़ी हैं बाहें मेरी, क्यों ना इसे भर लिया जाए. खाली पड़ी हैं बाहें मेरी, क्यों ना इसे भर लिया जाए. अब पता नहीं तुम कब मिलोगे, अब पता नहीं तुम कब मिलोगे, तब तक ऐसे ही सुकून लिया जाए. इसीलिए सोचा कि आंखें बंद कर दूं और तुझे महसूस किया जाए. इसीलिए सोचा कि आंखें बंद करूं और तुझे महसूस किया जाए. हालांकि इससे बाहें तो नहीं भरेंगी,
हालांकि इससे बाहें तो नहीं भरेंगी, लेकिन कुछ समय के लिए ऐसे ही सुकून दिया जाए। और जिस दिन आप मिलोगे उस दिन महसूस के साथ बाहें भी भर ली जाए। गौर फरमाइएगा कि जिस दिन आप मिलोगे उस दिन महसूस के साथ बाहें भी भर ली जाएं। और मेरी यही ख्वाहिश रहेगी कि आंखें बंद हो तेरी और महसूस मुझे किया जाए। हालांकि रिश्तों में काफी लड़ाइयाँ होती रहती हैं, तो उसके ऊपर भी मैंने लिखा है कि वो मेरी गलती करने पर मुझे सजा देती है। सबके साथ होता है कि वो मेरे गलती करने पर मुझे सजा देती है, और उस सजा को मुझे निभाते देख, उस सजा को जो उसने दिया था, उस सजा को मुझे निभाते देख वो मुझसे छुप कर खुद बहुत रोती है। अब जरूरी जस्ट नहीं, रिक्वेस्ट, प्लीज अपना थोड़ी माइक इंक्रीज कर लो या अपने पास ले आओ उसे, तुम्हारी वॉइस बहुत कम आ रही है। ओके मैम, ओके, श्योर। नाउ इट इज ओके। हाँ, it's better. Yeah, it's हाँ better. ठीक है, बोल। एक और शायरी पेश करना चाहूंगा कि प्यार होता है लेकिन कईयों के रिलेशनशिप भी टूट चुके होंगे। तो कि उन्होंने झूठ भी बहुत बोले और कस्में भी कई तोड़ी, उन्होंने झूठ भी बहुत बोले और कस्में भी कई तोड़ी, और वो समझे कि मैं यहाँ पागल बैठा। ध्यान दीजिएगा कि उन्होंने झूठ बहुत बोले और कस्में भी कई तोड़े, और वो समझे कि मैं यहाँ पागल बैठा, सुई धागा लिए उन्हें जोड़ने के लिए। कई बार ऐसा होता है वन साइडेड लव में कि गलती भले सामने वाले की हो, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए खुद के ऊपर ब्लेम ले लेते हैं। तो उसके लिए लिखा है कि ताकि उस पे इल्जाम ना आए मैंने ऐसा रास्ता ढूंढ लिया, ताकि उस पे इल्जाम ना आए मैंने ऐसा रास्ता ढूंढ लिया, मैंने जानबूझकर खुद ही गुनाह कर मैंने जानबूझकर खुद ही गुनाह कर खुद को उससे दूर किया। एक लास्ट शायरी खत्म करते हुए बोलना चाहूंगा कि सुना है कि लोगों की आखिरी इच्छा पूरी की जाती है, सुना है लोगों की आखिरी इच्छा पूरी की जाती है, तो सोचा मैं भी बता ही दूं भगवान को। सुना है लोगों की आखिरी इच्छा पूरी की जाती है, तो सोचा बता ही दूं मैं भी एक बार भगवान को कि उसे हर जन्म में पाना मेरी आखिरी इच्छा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thanks a lot, Ajay. Next up, we have Kunal Tripathi from ABES Engineering College, who would like to present a song here. Are you here, Kunal? Kunal Tripathi. Okay, I guess he's not here. Moving on to our next participant, Miss Ritika Indra from UPES Dehradun, who would perform a poem here. Ritika? Yes, sir. Yeah, please continue, Ritika. Okay, so the name of the poem is Too Special. So here I start. I don't know what to say, or should I even say, where to start, where to end, or just let it be the way it should be. Too special you are for me, to let you go away from me. It's your anger which I dread the most. Your existence in my life is what matters the most. This journey was never easy for me. Two most terrible incidents did I see. Not that I don't trust you, an unbelievably strong trust I have on you. Trust on our fate I lack. I find people always blaming me for messing things up whenever I look back. All these seems a lot for being just friends. But let me not complete that. You are so caring that if in this journey with me you stay,
I know you will understand in the best way. Thank you. Thanks a lot, Ritika. That was wonderful. Next on we have Mr. Rocky. एक और शायर हमारे बीच हैं. रॉकी जी आप हैं तो प्लीज कंटिन्यू करें. Do we have Mr. Rocky Chotala with us? Mr. Rocky Chotala? Jaspreet, he is with us. I think he's not able to hear you. Maybe. Yeah, he's in the meeting. Hello. Okay, maybe we'll take him later. Yeah, he is there. He's there. Okay. Please, sir, please continue. Okay, thank you so much. चंद शेर से शुरू करना चाहूँगा. एक गजल है या फिर तेरी नाराजगी सर पर उठाने में मैं खुद से रूठ गया तुझको मनाने में. मुझे मतलब नहीं मालूम ये ख्वाबों का, वो रोए इनकी ताबीर बताने में. मिटा बैठा है अब तो मुझको यादों से, मुझे तो एक उम्र लगे तुमको भुलाने में. और मुझे उम्र लगे तुमको भुलाने में. और सॉरी तुमने मेरा महरूफ सितमगर था मगर कुछ ये ज़माना कम नहीं दिल को दुखाने में. और एक गज़ल कुछ यूँ है कि ये फलक से अब निगाहें मैं मिलाना चाहता था, ये फसाना मैं फरिश्तों को सुनाना चाहता था. काश ऐसा होता कि आँखों से आंसू पहुँचता वो, वरना मैं जी भर के उसको रोकर दिखाना चाहता था. कोई साजिश थी जो एक दरख्त को जन्नत में रखा था, वो खुदा दुनिया बनाने का बहाना चाहता था. एक बड़ी लहर डुबा ले गई शहर के सब घरों को, वो समंदर अपनी गहराई बताना चाहता था. थैंक यू सो मच. बस मेरे पास आज का यही था लिखा हुआ. बहुत बहुत शुक्रिया रॉकी जी आपका. Next on we have Palak. She's a student at DAV Public School, Sector 14, Faridabad, and she has participated in public speaking. Palak, are you here? Do we have Palak from DAV? Palak? Okay, maybe she's not here right now. We'll take her later. Next on, we have a poetry blogger, Miss Sehaj Kaur. Sehaj, are you here? Hi, Jaspreet. Hi, Sehaj. Please continue. Hello, everyone. Before starting my poetry, I would like to ask you all a question. Do you think we treat the girls in a similar way we treat the boys? So, my poetry is on this sensitive topic of a girl in both urban and rural areas. Let's help the girl fly. In the rural areas, a pregnant woman is mostly taken to test, a boy or a girl that needs to be checked. Congratulations, good news for the mother. It's a baby princess in her stomach. The family disowns her, calls for an abortion. The innocent mother undergoes depression. If the girl takes birth, she's killed by this evil world. If the girl manages to survive, she's not educated. This is what she's deprived. If the girl somehow gets a chance to complete her schooling, she's married to the one who's mostly abusive. Domestic violence is what she will face. Putting out her demands is never in the race. Demand for the dowry is the only case. What else is left for her to face? And in the urban areas, a girl is given birth. She is educated first. She stands on her feet. She starts earning to feed. Do you think it's so easy? Facing discrimination makes her queasy. Separate schools and female coach. This is what she undergoes. Why can't a
a man teach? Why can't she sit with the boys to get preached? Giving everything is not just her need, she demands equality. That's also her need. Overnight school picnics and adventure rides, attending college fest are also her basic rights. If she gets this freedom to enjoy, people often say she is spoiled. She is again deprived, asking her parents, why me every time? Parents often tell her the Nirbhaya story. Is this what is all her glory? If a girl tries to fly, people rape her with their eyes. Her dreams shattered, she's broken twice. They often claim girls are equal to boys, then why is she played like a toy? You can't wear these shorts, it's too short. You can't go to that party, you're too young for that party. You will not travel there all alone. You will not have any social media accounts of your own. You will not do this and you will not do that. This is all we very often have. So I ask you all a question. Why do boys have no restrictions? Are they ever deprived of their freedom? I really hope this fight for equality gains some momentum. Thank you so much everyone for giving me such a wonderful opportunity. Thanks a lot, Sahaj. Indeed, we as a society need to strongly advocate for women's rights. Moving on, we have another शायर with us, सूरज विश्वास. सूरज जी, आप यहाँ पर हैं? Mr. Suraj Vishwas. Jaspreet, he is not with us. Okay, moving on. We have Miss Vidya Bhushan from MRDC who would present a song here. Do we have Miss Vidya Bhushan? Hello, I'm not Miss. I'm Mr. So sorry, sir. So sorry. I'm sorry. My bad. My bad. Please continue, sir. Mr. Vidya Bhushan, sir, please. Okay. Would you like to hear Thumri? Hello. Who Yes, is the sir. announcer? Yes, sir. Thumri chalega? Yeah, it is totally up to you, sir. You have the creative freedom today. It's an open mic. दो लाइन में कुछ सुनाता हूँ. दिल की चोटों ने कभी चैन से रहने न दिया, जब चली सर्द हवा हमने तुम्हें याद किया, याद पिया की आए, याद पिया की आए, हाँ ये दुख सहा ना जाए, है राम याद पिया की आए, याद पिया की आए. इसके बाद मैं एक अपना ओरिजिनल सुनाता हूँ, दो लाइन. दिल ये मुसाफिर हुआ, तेरा मुसाफिर हुआ, दिल ये मुसाफिर हुआ, तेरा मुसाफिर हुआ, तुम ही मंजिलें रास्ते हो गए, ख्वाब सारे तेरे वास्ते हो गए, ऐ खुदा तू बता है ये क्या राबता, दिल ये मुसाफिर हुआ, तेरा मुसाफिर हुआ, दिल ये मुसाफिर हुआ, तेरा मुसाफिर हुआ. मैंने कोशिश बहुत की बता दूं मगर लफ्ज होठों पे बस कांपते रह गए, फिर मैं जानिब तेरे भेजता शायरी, हर्फ सारे धरे के धरे रह गए, इश्क कैसे करें तुमको अपना बयां,
दिल ये मुसाफिर हुआ, तेरा मुसाफिर हुआ, दिल ये मुसाफिर हुआ, तेरा मुसाफिर हुआ। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट सर, दैट वाज वंडरफुल। सूरज जी हमारे साथ आ चुके हैं। सूरज जी प्लीज कंटिन्यू। हेलो। जी सर प्लीज कंटिन्यू। नमस्कार। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी सर, आपकी आवाज आ रही है, प्लीज कंटिन्यू करें। चलिए कुछ शेर सुनाऊंगा मैं। तो शेर देखते हैं कि अपनी बदसलूकी का थोड़ा तो लिहाज रखो, अपनी बदसलूकी का थोड़ा तो लिहाज रखो, जब मुसलसल देती रहो लेकिन जख्मों को थोड़ा तो पायाब रखो, कि अपनी बदसलूकी का थोड़ा तो लिहाज रखो, जब मुसलसल देती रहो लेकिन जख्मों को थोड़ा तो पायाब रखो, और एक मैं ही क्यों जो हमेशा तेरे होठों को चूमना चाहे, कभी तुम भी तो मेरे लिए अपनी नीयत खराब रखो। एक शेर और देखते हैं कि अगर मिले खुदा कभी तो यही सवाल करे, अगर मिले खुदा कहीं तो यही सवाल करे, मोहब्बत में तुमसे करना चाहे और क्या करें। अगर मिले खुदा कहीं तो यही सवाल करेंगे, मोहब्बत में तुमसे कर न सके अब और क्या करेंगे। और इंसानों की बस्ती में नहीं तो मुझको जन्नत में कहीं मिलना, इंसानों की बस्ती में नहीं तो मुझको जन्नत में कहीं कहीं मिलना, इश्क तुमसे दोबारा करेंगे, इश्क तुमसे दोबारा करेंगे। ये बड़ा प्यारा शेर है कि कुछ ख्वाब छोड़ आए थे उसकी काली बड़ी आंखों में, हमने चांद उतरते देखते हैं कई बार, कि कुछ ख्वाब छोड़ आए थे उसकी काली बड़ी आंखों में, हमने चांद उतरते देखते हैं कई बार उसकी आंखों में, और एक मैं ही ना समझ था जो सुबह से सुना था, उसने सजा रखे थे सारे इजहार, उसने सजा रखे थे सारे इजहार। हर रात आती है यादें तू, हर रात आती है यादें तू, अब चांद में सूरज नजर, हर रात आती है तेरी यादें तू क्यों नहीं आती, अब चांद में कोई सूरज नजर नहीं आता, मैं तुझसे बिछड़ कर जिंदा हूँ तो लानत है मुझ पे, मैं तुझसे बिछड़ कर जिंदा हूँ तो लानत है मुझ पे, मैं खुदा मुझे मौत क्यों नहीं, मैं खुदा मुझे मौत क्यों नहीं। और कि दिल को जला के खाक किया मैंने, कि दिल को जला के खाक किया मैंने, इश्क को बर्बाद किया मैंने। चलिए अगला शेर सुनाता हूँ कि ऐसा तो कोई इत्तेफाक न हुआ, मैं जलकर तेरे हिजर में आग, कि ऐसा तो कोई इत्तेफाक न हुआ, मैं जलकर तेरे हिजर में आग न हुआ, मेरी आंखें मुंतजिर तेरे वस्ल को, मेरी आंखें मुंतजिर थी तेरे वस्ल को, तेरी आमद तक जिस्म की रात हुआ, तेरी आमद तक जिस्म की रात हुआ। ये बिखरी जुल्फे क्या लिखती है तेरे गाल पर, ये बिखरी जुल्फे क्या लिखती है तेरे गाल पर, कुछ तो दीजिए जवाब आप मेरे, ये बिखरी जुल्फे क्या लिखती है तेरे गाल पर, कुछ तो जवाब आप मेरे सवाल पर, और मैं आखिरी नींद में हूँ और वो आया है मिलने, मैं आखिरी नींद में हूँ और वो आया है मिलने, मैं जानता था मंजर ऐसा ही होगा विशाल, जानता था मंजर ऐसा होगा विशाल। बड़ा प्यारा था, तुझे छूऊं तो मैं जल जाऊं,
तुझे छूऊं तो मैं जल जाऊं, तुझे छूऊं तो पिघल जाऊं, तुझे छूऊं तो मैं जल जाऊं, तुझे छूऊं तो पिघल जाऊं, बाहों से रिहा कर दे जान, जान जान और मैं तेरा मातम मनाऊंगा लेकिन तेरा गम नहीं, मैं तेरा मातम मनाऊंगा लेकिन तेरा गम नहीं मनाऊंगा, तारीख याद रखूंगा लेकिन जन्मदिन, मैं तेरा मातम मनाऊंगा लेकिन तेरा गम नहीं मनाऊंगा, तारीख याद रखूंगा लेकिन जन्मदिन नहीं मनाऊंगा, और कयामत के बाद एक शख्स तू ही क्यों ना हो जहान, मैं मर जाऊंगा लेकिन जीता नहीं, मर जाऊंगा तुझे कि खुदकुशी करने जा रहा दरिया डूबा था, कि खुदकुशी करने जा रहा था दरिया डूबा जा रहा, तो जालिम आए बेनकाब होकर तो उसके आंखों में डूबा, जालिम आए बेनकाब होकर बहुत 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 धन्यवाद आपका सूरज जी. Next up, we have a special performance from Deeptanshu Kant. Deeptanshu is a student at DAV Public School, Sector 14, Faridabad, and he is registered for stand-up comedy. Are you here, Deeptanshu? Deeptanshu Kant? Okay, I think he hasn't joined right now. We will see when he joins. Next up, we have Vritika Sharma, student at MRIRS, and she is going to recite a poetry today. Vritika Sharma? Hello, am I audible? Yeah, Ritika, I can hear you. Please continue. Yeah, yeah. Just give me a second. All right. So I'll be reciting the poem today. And according to me, a poem should be short, and it should tell a whole story and whole lot of emotions about a person or whatever the life they have had. Okay. So there I go. You were standing there in the light, waiting for me to hold me tight. There was a time when you wanted me to win the fight, and everything seemed so right. I was scared to touch, to feel. You said you're gonna help me to heal. I was drowning in the river of emotions, scared and sobbed of all the stupid illusions. You screamed and shouted. You said, let it all out. I'll give you the magic potion. Come up, baby girl. It's just in your head. It's just your stupid emotions. But then there was a cyclone in the sea. I was ready to come out. I said, help me. Help me to come out. Help me to cry out loud. But you said, I'm sorry, I can't, my love. You said, I'm sorry, I can't be the one you're looking for. Was I the troubled fish near the shore? He turned and walked away. Was it a false hope or was it a fallen dream? Because now I cannot scream. It's maybe not a poem. It's maybe just a bad dream. Because all those memories cannot be unseen. Thank you so much. Thanks a lot, Ritika. Next up, we have Sakshi Sharma from FMEH MRIRS. She's going to present a poetry too. Sakshi, are you here in the call? Sakshi, please switch on your mic. Am I audible? Yes, Sakshi, you are. Please continue. ओके तो मेरी कविता का शीर्षक है तुम थे. तो शुरू करती हूँ.
उन दिनों महज 16-17 साल की थी मैं। उन दिनों महज 16-17 साल की थी मैं और रातों को जगने की ये मेरी आदत नई नहीं थी। तुम्हें तभी तो नोटिस करना शुरू किया था मैंने, और रातों को तुम्हें देख के जो मिलती थी वो राहत नहीं रही थी। पता ही नहीं चला कि राहत कब आदत बन गई, आदत कब जरूरत और जरूरत कब चाहत। शायद लड़कपन की वो मेरी पहली सी मोहब्बत नहीं रही थी। याद है तुम्हें, याद है तुम्हें मैं थक हार कर जब घर आया करती थी और तेरा चेहरा देख के फिर से खिल जाया करती थी। गेहुआ सा वो रंग, गेहुआ सा तेरा वो रंग न जाने कैसा जादू करता था यार। यू हैव नो आइडिया, मैं तो महज तेरी खुशबू से बहक जाया करती थी। और उसके बाद उस पल, उस लम्हा, उस वक्त तुम थे, मैं थी। उसके बाद उस पल, उस लम्हा तुम थे, मैं थी, हमारे दरमिया में और कोई नहीं था। तभी तो तुम थे मेरे पास ऐसे जैसे और कोई नहीं था। याद है तुम्हें, याद है तुम्हें सर्दियों की उन रातों में मैं सब घर वालों को सुलाकर छत पे आ जाया करती थी। याद है तुम्हें सर्दियों की उन रातों में मैं सब घर वालों को सुलाकर छत पे आ जाया करती थी, और कभी तुम्हें तो कभी उस चांद को बस तकती चली जाती थी। तुम और चांद, तुम और चांद बहुत कंसंट्रेशन से सुनते थे मुझे, जब मैं अपने नॉवेल्स में से वो हर पढ़ती चली जाती थी। और तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर हमेशा मेरे बॉडी टेम्परेचर से ज्यादा रहता था। तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर हमेशा मेरे बॉडी टेम्परेचर से ज्यादा रहता था। और पगली सी शरारती सी मैं तुम्हें अपने दोनों हाथों में कस के बैठ जाया करती थी। और उसके बाद जब तुम्हारे लबों को मेरे लबों का स्पर्श हुआ करता था, तुम्हारी सांसों में मेरी सांसों की मिश्री सी घुल जाया करती थी, और इसके आगे की कहानी में तेरे नशे में हो चूर अक्सर भूल जाया करती थी। और जानती हूँ ये दूरियां जरा बढ़ने लगी हैं। जानती हूँ ये दूरियां जरा बढ़ने लगी है, और मुझे स्टारबक्स और जूस कॉर्नर में किसी और के साथ देख तुम्हारी थोड़ी सी तो जलने लगी है। पर यार तुम तो वाकिफ ही नहीं मेरी मोहब्बत की हद से। ये जूस, बियर और नींबू पानी सब टाइम पास है यार, क्योंकि माय डियर कप ऑफ टी, मेरी ये जिंदगी तुमसे ही तो चलती है। तो जाने बहार गुले गुलजार ऐसे नाराज ना हो यार, क्योंकि जितना तुझ में है उतना नशा तो सिगरेट शराबों में नहीं। तभी तो तू है मेरे पास ऐसे जैसे और कोई नहीं। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट साक्षी, दैट वाज वंडरफुल। आई एम श्योर काफी लोग यहाँ पर रिलेट कर सकेंगे आपकी इस कविता से। नेक्स्ट ऑन वी हैव श्रेया गुप्ता। Shreya will sing a song for us. Do we have Shreya here? Okay, maybe Shreya is not in the call right now. Next on we have Mansi Makhija with her poetry. Mansi, are you here? Yeah, hi. Hi Mansi, please continue. Yeah, thank you for calling me here, and thanks to Rishika for sending me that link. So my poem is all about a toxic relationship, and the title of the poem was "You Were Blind." So here comes my poem. Hey, how's you? I know you love it. When you see me weep, I know you love it because you never complained. You always went to sleep, no matter that I cried like a lunatic or it was just a mere weep. I don't know what I did to make you hate me like a disgusting treat. It's just a hate, or you loathe me or make me discreet. Why can't you love me for once from the core? Why, whenever I try to see some admiration in your eyes, you start calling me a whore? That was so easy for you to say, go and die, if you can't bear staying with near me. That was so easy for you to call me an egoistic bitch when I finally made my mind to not to disturb you anymore. Why? Because you said I'm pathetic, bitch. Because you said I'm unlucky and a cursed, Chris. That was
always so easy for you to call me with such disgusting names, and later you used to come back to me and tell me that it was just because you were angry. That you doesn't really mean. Who said that you can do anything you want and anything you please? Whatever. And whether you are happy, angry, or tense, or anything you please. That's enough. Let me tell you, today and now, I I was and I am a diamond, and you are a piece of coal. No, actually, no. You're not even a coal. Why? Because coal is even valuable, right? And you're just a heap of herbs. And I am the sunshine, but you are too bright. Thank you. Thank you so much, Mansi. Toxic relations indeed drain people out. There's one request for all the participants. I know we all are in our comfort zones right now, sitting at the home, but it would be really wonderful if you all could just switch on your videos too. No pressure, but it would be really wonderful if you could. Moving on, we have Bhushan Singhal with us. Bhushan जी एक गाना गाएंगे. Hello everyone. Hi Bhushan, please start. Okay, I'm using my Tanpura for the song Afreen by Rahat Fateh Ali Khan ji. ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई, जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई, जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई, जिस्म नगमा कोई, जिस्म खुशबू कोई, जिस्म जैसे महकती हुई चांदनी, जिस्म जैसे मचलती हुई रागिनी, जिस्म जैसे के खिलता हुआ एक कमल, जिस्म जैसे के सूरज की पहली किरण, जिस्म तरशा हुआ दिलकशों दिलनशी, संदली संदली मरमरी मरमरी, हुस्ने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, हुस्ने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं। आफरी 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 आफरी, तू भी देखे अगर तो कहे हम नशी, आफरी 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 आफरी, हुस्ने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, हुस्ने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं। धनी 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 सा गा धनी 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 सा गा धनी 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 सा गा धनी सा नि सा गा धनी सा गा म गा सा धनी नि सा गा गा म दा धनी नि सा नि दा म गा म ता म गा म सा गा म दा नि सा गा नि सा नि दा म गा नि सा नि दा म गा सा धनी नि सा गा गा म दा धनी नि सा गा गा सा नि दा दा म गा सा धनी सा गा म दा नि सा गा नि सा नि दा म गा म सा गा नि सा नि दा दा म गा नि दा 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 नि नि म दा दा गा गा म सा सा गा गा नि सा सा दा दा नि सा सा गा गा म दा दा नि दा नि सा दा नि गा म दा म गा म दा नि सा दा म गा म सा। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट भूषण, बेहद ही खूबसूरत प्रस्तुति आपकी। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट ऑन we have Mr. Gurpreet Singh. Gurpreet Singh, he would like to sing a song for us. Do we have Mr. Gurpreet with us?
He's here in the call. Maybe he's not able to switch on the mic right now. Moving on to our next participant, we have another Shire in here today, Miss Mansi Bansal. She is a student of biotech. Is Mansi here? Yes, sir. Please continue, Mansi. एक लड़की का टकरार होता है, उसके बाद कुछ ऐसा हाल होता है जो मैं अपनी शायरी के थ्रू बताना चाहती हूँ। तो लड़का सोचता है, जब से उसे देखा दिल में एक सवाल है, जब से उसे देखा दिल में एक सवाल है, क्या उसे पता मेरा ये हाल है? जब से उसे देखा ये ख्याल है, क्या उसके बिना जिंदगी मेरी बेहाल है? दूसरी तरफ लड़की सोच रही होती है, जब से उसे देखा आंखों में सपना है, जब से उसे देखा आंखों में सपना है, क्या वो मेरा अपना है? जब से हुई टकरार दिल बेकरार है, जब से हुई टकरार दिल बेकरार है, क्या वही मेरा पहला प्यार है? फिर दोनों मिलते हैं और इस तरह कुछ अपनी बातें बयां करते हैं। तो लड़का कहता है, आसमां को छूने का इरादा है, आसमां को छूने का इरादा है, कुछ हासिल करने का तुझसे वादा है। खुश होना तो बहुत आसान है, खुश होना तो बहुत आसान है, तुझे खुशी देने का मन ज्यादा है। तो इस पे लड़की कहती है, जब तू पास आता है दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, जब तू पास आता है दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, जब तू दूर जाता है तो सांसें भी थम जाती हैं। यूं ही इनकी बातों का सिलसिला जारी होता है। फिर आती हैं कुछ लॉकडाउन की घड़ियां। तो लड़के का हाल कुछ ऐसा होता है, तेरे बिना जिंदगी अधूरी लगती है, तेरे बिना जिंदगी अधूरी लगती है, तू नहीं तो जीना मजबूरी लगती है, तू पास है तो दिल राइट है, वरना एक रेड कलर की साइड है। इसके दूसरी तरफ लड़की का भी कुछ हाल ऐसा ही होता है। तो वो बताती है, दिल को तेरी याद आती है, दिल को तेरी याद आती है, वो हर पल मुझे इस कदर सताती है, रब करे जिंदगी भर तू साथ रहे, रब करे जिंदगी भर तू साथ रहे, क्योंकि तेरे बिना जिंदगी नहीं चल पाती है। लड़का बहुत सोचता है, उसके बाद सोचता है, जिंदगी बहुत टाइट है, क्या फ्यूचर में उसके साथ रहने का मेरा कोई राइट है? तो वो लड़की से कहता है, कुछ पल का साथ है हंसकर काट लेते हैं, कुछ पल का साथ है हंसकर काट लेते हैं, फिर तू रहे ना रहे कुछ यादें बांट देते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट मानसी, दैट वाज वंडरफुल। काफी लोगों की लाइफ में लॉकडाउन के बाद ये चेंज आया है। मूविंग ऑन, वी हैव उदित अरोड़ा who would like to sing a song for us. Udit Arora. Okay, maybe he's not with us right now. Our next participant is Mr. Rishabh Chauhan. He's a student at MRIRS and he would like to sing a song. ऋषभ जी प्लीज अपना माइक ऑन करें। Mr. Rishabh Chauhan. Hello. Yes, Rishabh, you are audible. Please Hello. continue. Rishabh, all the best. Okay. Thank you. So today I'm presenting a song, and this is my favorite song, and I hope you'll like too. So here we are. तड़पाए मुझे तेरी यही बातें एक बार दीवानी, थोड़ा तो सही प्यार तो कर। मैं sorry, एक मिनट, can you start again? Yeah, sure. Don't take too much Actually, I pressure. forgot the It's lyrics. fine. Oh, कोई बात नहीं। Okay. नेट पे आप निकाल लीजिए, it's fine. No. तड़पाए Yes, Rishabh, मुझे please. तेरी सभी बातें एक बार है दीवानी,
झूठा ही सही प्यार तो कर। मैं भूला नहीं हंसी मुलाकातें बेचैन करके मुझको, मुझसे ज्यादा न फेर नजर। सर्दी की रातों में हम सो रहे हैं चादर में, हम दोनों तन्हा हो ना कोई भी रहे इस घर में। जरा जरा महकता है बहकता है आज तू मेरा तन बदन। मैं प्यासा हूँ मुझे भर ले अपनी बाहों में। जरा जरा बहकता है महकता है आज तू मेरा तन बदन। मैं प्यासा हूँ मुझे भर ले अपनी बाहों में। यूं ही बरस बरस काली घटा बरसे हम यार भीग जाएं चाहत की इस बारिश में। तेरी खुली खुली लटों को सुलझाऊं मैं अपनी उंगलियों से, मैं तो हूँ इस ख्वाहिश में। सर्दी की रातों में हम सो रहे हैं चादर में, हम दोनों तन्हा हो ना कोई भी रहे इस घर में। जरा जरा महकता है बहकता है आज तू मेरा तन बदन। मैं प्यासा हूँ मुझे भर ले अपनी बाहों में। जरा जरा महकता है बहकता है आज तू मेरा तन बदन। मैं प्यासा हूँ मुझे भर ले अपनी बाहों में। ओ थैंक यू। थैंक्स अ लॉट ऋषभ, बेहद ही खूबसूरत आवाज है आपकी। नेक्स्ट ऑन वी हैव वैशाली पांडा. शी इज अ स्टूडेंट एट MRIRS and she is performing a poetry. Vaishali, please continue. Hello everyone. Hi Vaishali, please continue. I'm Vaisali Panda. I'm presenting here a poetry. खुद से खुद की लड़ाई। खुद से खुद की लड़ाई, अगर ये सपना नहीं तो क्या है। खुद ही मैं खुद को देखती हूँ लेकिन फिर भी कभी खुद में खुद को नहीं देख पाती। अगर ये मजाक नहीं तो क्या है। सपनों में भी सपनों की दुनिया में रहती हूँ और उन सारे सपनों के सच होने के सपने में जीती हूँ। अगर ये सपने की लहर नहीं तो क्या है। खुद से ही खुद को बनाकर, खुद ही से ही खुद को मिटाकर, खुद ही में मिल जाती हूँ। अगर ये खुद से खुद की लड़ाई नहीं तो क्या है। जागना तो चाहती हूँ मगर डर है कि अपना सब कुछ खो दूंगी। अब करूँ तो क्या करूँ। इसमें भी कोई शक नहीं कि खुद को खोकर मैं खुद को पालूंगी। खुद से ही चल रही खुद ही की लड़ाई में खुद से ही हार रही हूँ मैं। बहुत से जज्बात और बहुत से ख्वाब कैद है इस दिल में, जिन्हें जिंदा ही दफा करके हर पल हर लम्हा खुद को ही मार रही हूँ मैं। क्योंकि ये लड़ाई है मेरी खुद से। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया वैशाली जी, आपने एकदम सही कहा। अपने आप से जो लड़ाई लड़ी जाती है उसे लड़ना सबसे मुश्किल होता है। नेक्स्ट ऑन वी हैव प्रियांशी भाटिया, student at MRIRS, who is here to present a song. Priyanshi? Hi. Hi Priyanshi, please continue. So I will today sing on the song हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। दो लफ्ज की है बातें कही है, क्यों दरमियाँ फिर रुकी रुकी, कह भी न पाए रह भी न पाए, क्यों बेवजह है बेबसी। तुम में हम है
में तुम हो, तुमसे हम हैं, हमसे तुम हो, किस्मतों से मिलते हैं जो दिन यहाँ हर किसी को नहीं मिलता। यहाँ प्यार जिंदगी में हर किसी को नहीं मिलता। यहाँ प्यार जिंदगी में खुश नसीब है हम जिनको है मिली बार जिंदगी में हर किसी को नहीं मिलता। यहाँ प्यार जिंदगी में। प्यार ना हो तो जिंदगी क्या है, प्यार ना हो तो बंदगी क्या है। प्यार ना हो तो जिंदगी क्या है, यार ना हो तो बंदगी क्या है। तुझसे ही हर खुशी है, तेरे दम से आज की है जाने। मिल जाए हम तो सब कुछ सही है, फिर इस तरह क्यों है जबी। तुम में हम हैं, हम में तुम हो, तुमसे हम हैं, हमसे तुम, किस्मतों से मिलते हैं जो दिन हर किसी को नहीं मिलता। यहाँ प्यार जिंदगी में हर किसी को नहीं मिलता। यहाँ प्यार जिंदगी में। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट प्रियांशी, बहुत ही खूबसूरत आवाज है आपकी। नेक्स्ट ऑन एक और शायर हमारे बीच मौजूद हैं, हिमांशु आर्य जी, MRIRS के स्टूडेंट। आर यू हेयर हिमांशु? Yes, sir, I'm here. हाय हिमांशु, प्लीज कंटिन्यू, ऑल द बेस्ट। Thank you, sir. मेरा नाम हिमांशु आ रहा है, मैं बीकॉम ऑनर्स फाइनल ईयर से हूँ और मेरी शायरी मोहब्बत के ऊपर है। तो अर्ज कर रहा हूँ, अर्ज किया है। आज क्यों किसी की याद सोने नहीं देती, इस जाने मन की बंदिशें हमें रोने नहीं देती। जरा गौर फरमाइएगा। आज क्यों किसी की याद हमें सोने नहीं देती, इस जाने मन की बंदिशें हमें रोने नहीं देती। कैसी कशिश है उसकी जुदाई में, जो उसे मेरा और मुझे किसी और का होने नहीं देती। मोहब्बत रंग लाती है जब दिल से दिल मिलते हैं, मोहब्बत रंग लाती है जब दिल से दिल मिलते हैं। मुश्किल तो ये है जनाब कि दिल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। तेरे दिल में मुझे ऐसी उम्र कैद मिले, तेरे दिल में मुझे ऐसी उम्र कैद मिले कि थक जाए सारे वकील, मुझे जमानत भी ना मिले। अब मैं उन लोगों के लिए बोलना चाहूंगा जो एक तरफा प्यार करते हैं, तो कि वो पापा की परी है, मैं उसकी परवाह करता हूँ। कि वो पापा की परी है, मैं उसकी परवाह करता हूँ। वो मुझसे प्यार नहीं करती, मैं एक तरफा प्यार करता हूँ। तुझे तेरी जीत मुबारक, जश्न तो मेरा हार का होगा। तुझे तेरी जीत मुबारक, जश्न तो मेरी हार का होगा। हारते तो काफी लोग हैं, शायद ही हमसे कोई जीता होगा। अब थोड़ी मजेदार सी शायरी सुनाना चाहूंगा मैं आप सबको। रिश्तों के इस बाजार में मोहब्बत की दौलत मत बांटना, रिश्तों के इस बाजार में मोहब्बत की दौलत मत बांटना। बसंत इन कुत्तों के सामने मत नाचना। कुछ भी कर ले ए हसीना, नहीं लगेगा तेरा चांस। एक कुछ भी कर ले ए हसीना, नहीं लगेगा तेरा चांस। 1 2 3 4 लुंगी डांस, लुंगी डांस, लुंगी डांस, लुंगी डांस। जिंदगी ने जिंदगी पर गम दिए हैं। सही बात है, जिंदगी तो गम देती है। जिंदगी ने जिंदगी भर गम दिए हैं। बैठो भाई बैठो, भगवान ने बैठने के लिए बम दिए हैं। थैंक यू सर। बहुत ही खूब हिमांशु, हास्य थैंक रस यू से सर। भरे हुए आपके शेर। नेक्स्ट ऑन वी हैव पूजा नायक, a BCom honor student at MR. Pooja will sing a song for us. Is Pooja here?
Okay, maybe Pooja is not here right now. Next on, we have Kshitij, a student of MRIRS, who would like to present a song. Kshitij? Hi, Kshitij, Hello. please continue. Hi, how are you all? Hope you're doing good. So, आज मैं यहाँ पर जो गाने जा रहा हूँ, it's a folk song of Punjab only. इसका नाम है वे मैं चोरी चोरी तेरे नाल लाली आँख. रिमा पने रिमा पने मपने नेता मने तरे तरे निता तरे मारे तरे निता मारे तनी तरे सने बनी ता तनी पमा बनी नि पमा रे तरे ममा रे ममा बनी नि बनी तरी ता बनी तरी ता बनी तरे तनी रो. वर्डिंग्स पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा. इश्क आप केड़ा चंगा चंगा रहन भी नहीं दिंदा. इश्क आप केड़ा चंगा चंगा रहन भी नहीं दिंदा. इश्क आप केड़ा चंगा चंगा रहन भी नहीं दिंदा. दिने अवासियां पवांदा रात नूं पैण भी नहीं दिंदा. इश्क आप केड़ा चंगा इश्क आप केड़ा चंगा चंगा रहन भी नहीं दिंदा. दिने अवासियां पवांदा रात नूं पैण भी नहीं दिंदा. दुनिया दुनिया तो है दुनिया दो जगह के मैं प्यारे तेरा रखा. वे मैं चोरी चोरी तेरे नाले लालियां वे मैं चोरी चोरी तेरे नाले लालियां खावे. दुनिया तो चखा के मैं प्यारी तेरा रखा. वे मैं चोरी चोरी तेरे नाले लालियां खावे. वे मैं चोरी चोरी तेरे नाल लालियां. राग मेघ की कंपोजिशन है. It's also called a rain rag. मापियां दी है मापियां दी लाज तेरे लई मैं गवाई. इश्क क्या क्या करवाता है वो बता रहे हैं इसके अंदर. मापिया दी लाज तेरे लई मैं गवाई रे. मापिया दी लाज तेरे लई मैं गवाई रे. तू ते
तू ते आ जा साडी कदर ना पाई वे फिर भी मैं चली होके फिर भी मैं चली होके राह तेरा तका वे मैं चोरी चोरी तेरे नाल लालियां चोरी चोरी तेरे नाल लालियां वे मैं चोरी चोरी तेरे नाल लालियां खावे वे मैं चोरी चोरी तेरे Thank you so much. Thank you so much. You mean all. थैंक्स अ लॉट क्षितिज, आपकी आवाज और आपके साज ने आज की शाम में रंग ही डाल दिया। मूविंग ऑन, डू वी हैव गुरप्रीत सिंह विद अस? Yeah, hi Jaspreet. Hi, please continue Gurpreet. Hi guys, hi everyone. मैं कुछ ज़्यादा टैलेंटेड नहीं हूँ, एक थोड़ी सी छोटी सी शायरी पेश करना चाहूँगा। एक चीज़ पे गौर करवाना चाहता हूँ कि ये शायरी जो है सारी की सारी ये एक सूफियाना माहौल के रिलेटेड रहेगी हमेशा, एक महबूब और एक आशिक से रिलेटेड रहेगी हमेशा। तो शुरू करना चाहूँगा कि मैंने मासूम बहारों में तुम्हें देखा है, मैंने पुरनूर नज़ारों में तुम्हें देखा है, मैंने मासूम बहारों में तुम्हें देखा है, पुरनूर नज़ारों में तुम्हें देखा है, मेरे महबूब तेरी पर्दा नशी की कसम, मैंने अश्कों की कतारों में तुम्हें देखा है। मूविंग ऑन, ये रहेगा, वो आंखों में रहा दिल में नहीं उतर कर देखा, वो आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुहाफिज ने समंदर नहीं देखा, पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूं उसने मुझे छूकर नहीं देखा। कि आंख से आंख मिलाकर मेरा ईमान लिया, तू वही शख्स है तुझे मैंने पहचान लिया, कि आंख से आंख मिलाकर मेरा ईमान लिया, तू वही शख्स है तुझे मैंने पहचान लिया, तू मुझे चाहे या ना चाहे कोई गम नहीं, मैंने तो इतना चाह लिया कि खुदा मान लिया। रोज तारों की नुमाइश में खलल पड़ता है, रोज तारों की नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद पागल है जो अंधेरे में निकल पड़ता है, और मैं धड़कनों से भी कहता हूं कि जरा आहिस्ता चलो, सांस लेने पर भी इबादत में खलल पड़ता है। कि नई नवाजों की शोहबत बिगाड़ देती है, कि नई नवाजों की शोहबत बिगाड़ देती है, कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है, जो जुर्म करते हैं इतने बुरे नहीं होते, सजा ना देकर अदालत बिगाड़ देती है। और एक आखिरी शेर आपके नजर पेश है कि लब पे जब मेरे हुजूर तेरा नाम आता है, कि लब पे जब मेरे हुजूर तेरा नाम आता है, सामने साकिए कौसर लिए जाम आता है, मुझको भी अपनी गुलामी का अवसर दे दीजो, खोटा सिक्का भी तो आका कभी काम आता है। That's all. Thank you so much. I didn't have prepared for anything. ये just छोटा सा मैं लिख पाया हूँ थोड़ा बहुत. And thanks a lot. Giving over to Jaspreet. थैंक यू गुरप्रीत, क्या खूब फरमाया है आपने। Now I'm just gonna take the names of all the participants who couldn't perform because
वो शायद मिसिंग थे, तो अगर वो हैं तो प्लीज अभी कंटिन्यू कर सकते हैं। कुणाल त्रिपाठी, पलक फ्रॉम डीएवी, अगेन फ्रॉम डीएवी दीप्तांशु, एडवर्ड, श्रेया गुप्ता, उदित अरोड़ा एंड पूजा नायक। क्या इनमें से कोई अभी मौजूद है? चलिए, शायद से नहीं। तो क्षितिज जी, ऑन पॉपुलर रिक्वेस्ट आपकी तरफ से एक गाना और आज छा गया। Oh my God, thank you so much to all of you. ठीक है, okay. So I am here with my second song. Prepared नहीं था। एक काम करते हैं, I'll just sing आज इबादत from movie बाजीराव मस्तानी by जावेद बशीर साहब। आज इबादत रूबरू गई, आज इबादत रूबरू गई, जो मांगी थी जो मांगी थी उसे दुआ से गुफ्तगू गई। मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला तेरा शुक्रिया, दर्द के अंधेरों से आ गए उजालों में, इश्क के चरागों का नूर है ख्यालों में। दर्द के अंधेरों से आ गए उजालों में, इश्क के चरागों का नूर है ख्यालों में। नजरों से तेरी चाक दिल पे रफू हो गई, दिल पे रफू हो गई। मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला तेरा
शुक्रिया खुदा। Thank you so much to all of you. Thank you so much. Thank you, Jaspreet Singh ji. बहुत बहुत धन्यवाद क्षितिज, बहुत ही खूबसूरत आवाज है आपकी। चैट बॉक्स में रिक्वेस्ट आ रही है अजय जी आपके लिए कि आपकी पोएट्री मिस हो गई है और लोग फिर से सुनना चाहेंगे। Are you here? अजय कुमार जी, क्या आप फिर से अपनी कविता प्रस्तुत करना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू गाइस फॉर लविंग मी दिस मच। तो एक मेरी फर्स्ट लविंग पोइट्री जो कि फेमस हुई थी हर जगह नहीं, सिर्फ मेरे ग्रुप में, पैगाम में। तो काफ़ी अच्छी शायरी है, पोइट्री है, सॉरी। तो सुनाना चाहूँगा, जो है चलो कुछ यादें बनाते हैं। मेरे लिए काफ़ी स्पेशल है ये पोइट्री। तो कुछ ऐसे शुरुआत होती है कि चलो कुछ यादें बनाते हैं, उसमें सिर्फ हमारी बातें होंगी, हमारी दिल की मुलाकातें होंगी। चलो कुछ यादें बनाते हैं, उसमें सिर्फ हमारी बातें होंगी, हमारी दिल की मुलाकातें होंगी। मैं कुछ बोलूंगा तुम कुछ बातें करोगी, मैं कुछ बोलूंगा तुम कुछ बातें करोगी। कभी बेवजह साथ हंसेंगे, कभी बेवजह साथ रोएंगे, कभी बेवजह साथ हंसेंगे, कभी बेवजह साथ रोएंगे। सुना है प्यार में साथ रोना भी एक सुकून दे जाता है कईयों के लिए, कि सुना है प्यार में साथ रोना भी एक सुकून दे जाता है। ये हमारी यादों में कुछ और यादें जोड़ जाता है। अगली पंक्ति है कि काफी रिलेशनशिप में आने के बाद जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं वो मतलब ऐसी याद करते हैं अपने स्टार्टिंग के दिनों की। तो कुछ इस तरह होती है कि चलो हमारी पहली मुलाकात याद करते हैं, चलो हमारी पहली मुलाकात याद करते हैं, जब हम दोनों की आंखें मिली थी, दूर ही खड़े इशारों में बातें हुई थी। तुम्हारे होठों पर ना दिखाते हुए भी एक हल्की सी मुस्कान होती है, तुम्हारे होठों पर ना दिखाते हुए भी एक हल्की सी मुस्कान होती है, और वो लम्हा बस थमासा हम दोनों ही जीते हैं। इसी तरह चलो कुछ और यादें बनाते हैं, इसी तरह चलो कुछ और यादें बनाते हैं, उसमें सिर्फ हमारी बातें होंगी, हमारी दिल की मुलाकातें होंगी। तुम्हें याद होगा जब हमारी पहली बार बात हुई थी, तुम्हें याद होगा जब हमारी पहली बार बात हुई थी, ना चाहते हुए भी तुमसे आंखें चार हुई थी। तुम्हारी आवाज सुनते ही मेरे दिल में खलबली सी मची थी, तुम्हारी आवाज सुनते ही मेरे दिल में खलबली सी मची थी। तुम्हारी आवाज मेरे कानों में गूंज सी रही थी, ऐसा लग रहा था मानो बस मैं और तुम थी, ऐसा लग रहा था मानो बस मैं और तुम थी। तुमने देखा हो या ना देखा हो, तुमने देखा हो या ना देखा हो, पर सच्ची मेरे चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कान थी। आखिरी बनती है कि अभी तो सिर्फ 4 दिनों में इतनी यादें बनी हैं, अभी तो सिर्फ 4 दिनों में इतनी यादें बनी हैं, आगे मिलने पर और ना जाने कितनी सारी बातें होंगी। तुमसे हर एक मुलाकात से कई सारी यादें होंगी, तुमसे हर एक मुलाकात से कई सारी यादें होंगी, और उन्हीं यादों को याद करते हुए तुमसे रात भर बातें होंगी। इसी तरह चलो कुछ और यादें बनाते हैं, हमारे प्यार को और बढ़ाते हैं, हमारे प्यार को और बढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच अगेन। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी आपका। तो आज की शाम को एंड करने के लिए जतिन शोरान जो कि पैगाम के स्टूडेंट हैं, उनके द्वारा एक खास शेर है। जतिन जी प्लीज ज्वाइन द कॉल। सो गुड नाइट टू एवरीवन। एक्चुअली बहुत लेट हो चुका है, और मैंने अभी अभी लिखी है, मैं अभी सुनाता हूँ। एक सेकेंड। कि गुजरा है बहुत समय, गुजरा है बहुत समय, ये भी गुजर जाएगा, गुजरा है बहुत समय, ये भी गुजर जाएगा। आएगा एक लम्हा जब हम सब मिल पाएंगे और कॉलेज खुल जाएगा, आएगा एक लम्हा जब हम सब मिल पाएंगे और ये कॉलेज खुल जाएगा। थैंक यू। जी जतिन, हम भी काफी टाइम से इसी क्षण की वेट कर रहे हैं, कब वो लम्हा आए जो हम दोबारा कॉलेज में आ सकें और ये इवेंट फिर से करवाएं, इस बार ऑफलाइन मोड में करवा पाएं।
ऑनलाइन में इवेंट की इसेंस नहीं रह पाती है. But it was a wonderful event. Thank you so much for participating. In the end, Yashika ma'am, thanks a lot for conducting this event. And Yashika ma'am would like to give a vote of thanks for everyone. Yashika ma'am, over to you. Hi everyone, I hope everyone is safe during these pandemic times. And on behalf of entire Manavrashna family and Department of Students Welfare, I would like to extend my heartfelt thanks to all the participants and the audience for joining. And एक हमारे अभी भी आ रहे हैं, please चिन्मय admit हो जाएं. And I would I had a special thanks to all the students who joined it just for the performances. All the best, and a special thanks to Jaspreet and Rishika for being always supportive. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, Yashika ma'am. Thank you so much, DSW. Thank you so much, Gurjeet ma'am. बहुत ही खूबसूरत रात रही आज की. आप सबने पार्टिसिपेट किया. थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ लवली ऑडियंस. गुड नाइट, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, शुभ रात्रि.